پر احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ مومنین کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک نہیں ہزارہ احسانات ہیں، لیکن یہ احسان اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں خود فرمایا ہے کہ ایک ایسا احسان ہے جو میں نے فقط مومنین پر کیا ہے۔ اگرچہ دیکھیں یہ رزق، یہ اولاد، یہ مال، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتے ہیں، یہ بھی نعمات خداوندی میں سے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے جہاں رزق مومنین کو عطا کیا ہے وہاں کافروں کو بھی عطا کیا ہے، منافقوں کو بھی عطا کیا ہے، مشرکین کو بھی عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں ان کو بھی عطا کیا ہے، اور جو نہیں جھکتے ان کو بھی عطا کیا ہے۔ لیکن کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے، کیونکہ جب پیدا کر دیا ہے تو پھر رزق دینا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو بھیجا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنوں پر فقط یہ احسان کیا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو بھیجا ہے۔ یعنی یہ احسان کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ نعمت خداوندی ہے، اور فقط نعمت خداوندی نہیں بلکہ نعمت عظمیٰ ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے رسول اللہ کا وجود، سب سے بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ آپ توجہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مومنین کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور جہاں پر رسول اللہ کی ذات مومنین کے لیے نعمت عظمیٰ ہے وہاں کائنات کے رسول نے بھی مومنین پر عظیم احسان فرمائے ہیں۔ یعنی جہاں اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمائے ہیں کہ مومنین کے اندر اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، تو وہاں رسول اللہ کے بھی عظیم احسان ہے اس امت پر۔ اس امت پر رسول اللہ کے بھی عظیم احسان ہے، اور وہ عظیم احسان کیا ہے کہ جب رسول اللہ تشریف لائے تو رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے قرآن پاک نے اعلان کیا ہے، سورہ مبارکہ جمعہ میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے رسول آپ کے آنے سے پہلے یہ معاشرہ گمراہی میں مبتلا تھا، فتنہ و فساد میں مبتلا تھا، تفرقہ میں مبتلا تھا، نفرتوں میں مبتلا تھا، اور یعنی یہ معاشرہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اس قدر گمراہ تھے کہ سورج کی پرستش کرتے تھے، چاند کو خدا سمجھتے تھے، اور غیر اللہ کو خدا سمجھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ خدا سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انبیاء کو، یعنی دیگر انبیاء کو نبی نہیں سمجھتے تھے بلکہ خدا سمجھتے تھے، غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کو خدا سمجھتے تھے۔ یہ رحمت للعالمین کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ رسول اللہ نے آ کر فرمایا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا حقیقی کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ماشاءاللہ، یعنی رسول اللہ نے توحید کا حقیقی نقشہ پیش کیا اپنی قوم کے سامنے، اس معاشرہ کے سامنے، اس امت کے سامنے۔ کائنات کی حجت نے، کائنات کے رحمت للعالمین نے، جہاں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، جہاں تفرقہ میں مبتلا تھے، نفرتوں میں مبتلا تھے، تعصبات میں مبتلا تھے، جہالت اور گمراہی میں غرق تھے، اس وقت رحمت للعالمین نے آ کر ہم پر احسان کیا۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس وقت
کو याद करो, उस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। एक दूसरे के क्या थे? दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब के सदके तुम्हें आपस में जोड़ दिया। जब तुम्हारे दिलों में नफ़रतें थी, एक दूसरे से दूर थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। ये तासुबात ख़त्म किए, नफ़रतें ख़त्म की, जहालत को ख़त्म किया, तासुबात को ख़त्म किया, जो पस्ती में थे उन्हें बुलंदी की तरफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमारे लिए नेमत उज़्मा है, और ये रसूलुल्लाह का हम पर एहसान है कि रसूलुल्लाह ने गुमराह मुआशरे को रहनुमाई की, हिदायत अता फरमाई। हत्ता कि वो लोग जो बुत परस्ती में मुब्तला थे, जो 60 साल तक मुशरिक था, रसूलुल्लाह ने अपने किरदार से और अपनी सीरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुत परस्त इंसान को दूसरों के लिए नमूना बना दिया। इतना तब्दीली पैदा की सरकार ने कि गुमराहों को हिदायत अता फरमाई और नफ़रतें ख़त्म की, जहालत ख़त्म की, और सरकार ने किसी को सलेमान बना दिया, किसी को अबूज़र बना दिया, किसी को मिक़दाद बना दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। एक बार मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हमारे नबी की जो अज़मत है वो कुरान ने पेश की है। अगर हम ख़तीबों से अज़मत सुनेंगे तो ख़तीब तो अपनी बातें सुनाएंगे, लेकिन अगर रसूलुल्लाह की अज़मत सुननी है तो खुद कुरान से सुनेंगे। कुरान कसीदा है रसूलुल्लाह की अज़मत का। जो कुरान ने अज़मत पेश की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो किसी ने पेश नहीं की। आप कुरान की तरफ अगर तवज्जो फरमाएं थोड़ा दिक्कत से, तो देखें मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग रहे हैं, रब्बि शरह ली सदरी, ए मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिन मांगे फरमाया अल्लाम नशरह लका सदरका, ए रसूल हमने आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगते हैं और फरमाते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खुदाया, मेरे ज़िक्र को बुलंद कर दे, मेरे नाम को बुलंद कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम को बुलंद कर दिया, लेकिन अपने प्यारे हबीब को बिन मांगे फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए रसूल हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके नाम को बुलंद कर दिया है। और हदीस में है, रिवायत के जुमले सुनिए, अल्लाह के प्यारे हबीब के मुतालिक अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए मेरे हबीब हमने आपका इतना नाम बुलंद कर दिया है, इतना ज़िक्र बुलंद कर दिया है कि जहाँ मेरा नाम होगा वहीं आपका नाम होगा, जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका ज़िक्र होगा। और अगर कुरान पढ़ें तो आप देखें, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है वहीं रसूलुल्लाह का नाम भी साथ है। कुरान पाक की आयत अगर आप पढ़ें दिक्कत से, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व मन युमिन बिल्लाहि व रसूलिही बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही मन यअसिल्लाह व रसूलहू आज़ानुम मिनल्लाह व रसूलिही। अल्लाह रसूल, अल्लाह, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है वहीं रसूलुल्लाह का नाम है। यानी अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे हबीब का ज़िक्र जहाँ अपना ज़िक्र किया है वहीं रसूलुल्लाह का ज़िक्र किया है। क्यों? इसलिए कि खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त है रब्बुल आलमीन, और अपने हबीब को क्या बनाकर भेजा है?
वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन। सलवत पढ़ी मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने जहाँ बाकी अंबिया का जिक्र किया है तो बाज़ अंबिया को अल्लाह तबारक ताला ने ख़ुद सलाम पेश किया है और क्या फरमाया है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अंबिया को सलाम किया है, लेकिन जब अपने प्यारे रसूल को सलाम किया तो यहाँ अंदाज बदल दिया और क्या फरमाया, ये नहीं फरमाया सलामुन अला मोहम्मद, ये नहीं फरमाया। यानी जिस तरह बाकी अंबिया के मुतालिक अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में फरमाया है सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहीम, लेकिन इस तरह सलाम नहीं किया अपने प्यारे रसूल को, इस तरह सलाम नहीं किया सलामुन अला मोहम्मद, बल्कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना अंदाज ही बदल दिया है और क्या फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, अल्लाह और उसके मलाइका, अल्लाह के मलाइका, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दो मरतबा नाम आता है, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, मलाइकतहू की जो ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ लौटती है। यानी जहाँ ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकता, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका युसल्लूना अलन नबी, मेरे हबीब पर दरूद भेजते हैं, मेरे हबीब को सलाम करते हैं, मेरे हबीब पर दरूद भेजते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों से खिताब किया है कि आप भी इस तरह दरूद भेजो जैसे भेजने का क्या मकाम है रसूलुल्लाह का, क्या अज़मत है सरकार की कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम के अंदर अपने प्यारे रसूल को मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। अगर बाकी अंबिया का जिक्र किया है तो मुमकिन है एक नबी का एक ही नाम लिया हो या दूसरा नाम ले लिया होगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ नाम लिए हैं। कभी फरमाया है मुज़म्मिल, कभी फरमाया है मुदस्सिर, कभी फरमाया त्वाहा, कभी फरमाया यासीन, और फिर जिम्मेदारियां भी आयद की हैं। आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, ये कुरान पाक से मैं कुछ जुमले आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने रसूल को भी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे किया है, जिम्मेदारियां आयद की हैं रसूलुल्लाह पर। तो जो अल्लाह रसूलुल्लाह पर जिम्मेदारियां आयद करता है तो क्या वो हमें ऐसे ही छोड़ देगा? क्योंकि हमने नक्शे कदम रसूलुल्लाह पे चलना है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी की इताअत करनी है, क्योंकि कुरान ने कहा है ना अतीउल्लाह, इताअत करनी है। और फिर फरमाया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम मुझे अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो ये मोहब्बत कामिल उस वक्त होगी जब तुम मेरे रसूल की इत्तिबा करोगे। यानी इताअत का हुक्म भी दिया है और इत्तिबा का हुक्म भी दिया है। इताअत कौल में होती है और इत्तिबा फेल में होती है। इताअत यानी जो कुछ रसूलुल्लाह ने फरमाया है उस पर अमल करना है, और इत्तिबा जो कुछ रसूलुल्लाह करते जाएं नक्शे कदम पे चलना है, ये इत्तिबा है। यानी इताअत भी करनी है और इत्तिबा भी करनी है। अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता और फ़कत ये समझता है कि मैं तो काली कमली वाले की शिफात जो कुछ दुनिया में मैं करूं आज़ाद हूं, और जैसे मैं दुनिया से जाऊंगा तो रसूलुल्लाह मेरी शिफात करेंगे, काली कमली के नीचे मुझे पनाह देंगे,
اور میری شفاعت کریں گے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ چادر جو چادر رسول اللہ کے متعلق ہے، مدثر و مزمل کے متعلق ہے، یہ کملی کالی کملی والی چادر یہ مجرموں کے لیے نہیں ہے. یعنی جو بھی جرم کرے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، یا رسول اللہ میری شفاعت کریں اور میں آپ کی چادر کے نیچے آ جاؤں، مجرمین کے لیے نہیں ہے، گناہ گاروں کے لیے نہیں ہے، خطا کاروں کے لیے نہیں ہے. تو پھر کس لیے ہے؟ یہ چادر اس لیے تھی کہ رسول اللہ دنیا میں جرم چھڑانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ اس لیے آئے تھے کہ تم مجرم بن کر میرے پاس آ جانا. جرم چھڑانے کے لیے تھی، مجرم چھڑوانے کے لیے نہیں تھی. یعنی رسول اللہ دنیا میں آئے اور اس لیے آئے کہ تاکہ تعصبات ختم کریں اور گمراہی کو ختم کریں، اور جب گمراہی ختم ہو جائے گی تو انسان ہدایت پا جائے گا، اور جب انسان ہدایت پا جائے گا تو پھر بارگاہ رسول اللہ میں مجرم بن کر نہیں جائے گا، بلکہ مطیع رسول بن کر جائے گا، فرما بردار رسول بن کر جائے گا. چونکہ اس نے دنیا میں اطاعت رسول کی تھی، اس نے دنیا میں اطاعت رسول اور اتباع رسول کی تھی، اور جب بارگاہ رسول اللہ میں جائے گا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر نہیں جائے گا، بلکہ بارگاہ رسول اللہ میں جائے گا اللہ کے رسول جیسے آپ نے حکم دیا تھا، میں نے آپ کے حکم کی اطاعت بھی کی تھی اور اتباع کی تھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کے متعلق پہلا جملہ فرمایا ہے سورہ مبارکہ مدثر کے اندر، یا ایھا المدثر. اس کا ترجمہ ہے اے چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے تنبیہ کیجئے. یہ دن کی ماموریت ہے، یہ دن کا رسول اللہ کو حکم ہے، اٹھیے اور تنبیہ کیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے. سبحان اللہ. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک کیجئے. سبحان اللہ. اپنے لباس کو پاک رکھیے. یہ دن کی ماموریت ہے رسول اللہ کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے اور لوگوں کے سامنے میری کبریائی پیش کرنی ہے، میری عظمت پیش کرنی ہے، میری توحید پیش کرنی ہے. لوگوں کو بتانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لوگوں کو میری طرف متوجہ کیجئے. یہ دن کی تھی. لیکن رات کے متعلق سورہ مبارکہ ہے مزمل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اور مزمل کا معنی کیا ہے؟ اے کپڑوں میں لپٹنے والے. یہ ہے مزمل کا معنی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو حکم دے رہے ہیں، رات کو اٹھا کیجئے مگر کم. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیجئے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں کہ وہ نبی برحق کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جو وارث جنت بھی ہیں، دنیا اور آخرت کے وارث بھی ہیں، کیونکہ محبوب ہے خدا کے، اور سب کچھ رسول اللہ کے اختیار میں تھا. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ بارگاہ خداوندی میں فرائض تو کجا، نوافل بھی رسول اللہ کے کبھی قضا نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند تھا کہ میرا رسول رات کے وقت اٹھ کر مجھ سے باتیں کرے اور میں رسول اللہ سے باتیں کروں. سبحان اللہ. یہ میرا حبیب میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے. کیونکہ دنیا میں تو میرے رسول کی مصروفیت ہوتی ہیں، میرے نبی کی مصروفیات ہوتی ہیں، میرے حبیب رحمت للعالمین کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا حبیب آپ رات کے وقت اٹھا کیجئے مگر کم. رسول اللہ جب عبادت کرتے تھے تو پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے. سبحان اللہ. اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس طرح رسول اللہ بارگاہ خداوندی میں استغفار نہ کرتے ہوں.
70 मरतबा रोज इस्तगफार करते थे। और जब किसी पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह आप रोज 70 मरतबा इस्तगफार करते हैं तो खुदावंद तबारक ताला की बारगाह में आप 70 मरतबा इस्तगफार क्यों करते हैं? तो रसूलुल्लाह जवाब देते थे मैं अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। हमारी तहज्जुद तो कुजा, फ़राइज़ तो नवाफिल तो कुजा, कितने फ़राइज़ ही हमारे गुम होंगे। यानी हमें नमाज़ों का पता ही नहीं होता कि हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। रिवायात के अंदर है जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ता है, नमाज शब पढ़ता है, उसकी कब्र नूरानी होगी, सुभान उसकी कब्र कभी तारीक नहीं होगी, कब्र में अंधेरा नहीं होगा। अगर कब्र को रोशन करना चाहते हैं तो फिर रसूलुल्लाह के इस फरमान की इत्तिबा करें, पैरवी करें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने अपने हबीब को हुक्म दिया है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला, ए रसूल आप रात के वक्त उठा कीजिए मगर कम। अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया है कि आप मुझसे बातें करें, आप मुझसे राज और नियाज करें, आप मुझसे मनाजात करें, आप मुझसे मांगें। जो बारगाह खुदाबंदी में मांगता है खुदा उसका मकाम बुलंद कर देता है। जो नमाज तहज्जुद पढ़ता है, नमाज शब पढ़ता है, खुदा कभी उसे पस्त नहीं होने देता बल्कि उसका मकाम बुलंद करता है। अपने प्यारे हबीब के मुतालिक फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए रसूल हमने आपका मकाम बुलंद रखा है, बुलंद से भी बुलंद रखा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन हम किस कदर गाफिल हैं रसूलुल्लाह की ज़ात से, किस कदर गाफिल हैं कि हम कहते हैं फ़कत अकीदत ही काफ़ी है। आए चंद नाते पढ़ें, चंद कसीदे पढ़ें, चंद अशार पढ़ें और अकीदत पेश करें और फिर वापस चले जाएं, बस जो कुछ हमने पेश करना था कर दिया। नहीं, इस बात की मैं नफ़ी नहीं करना चाहता, अकीदत होनी चाहिए, लेकिन अकीदत के साथ इताअत लाजमी है और अकीदत के साथ वो मकसद फरामोश न करें कि जो रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए लाए थे। सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया है कि मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा रसूल दे वो ले लो। अपनी अकीदत पेश करने से पहले वो दरियाफ्त तो कर लो ना कि रसूलुल्लाह लाए क्या हैं, अपनी उम्मत के लिए हदिया क्या लेकर आए हैं, अपनी उम्मत को देना क्या चाहते हैं रसूलुल्लाह। जो कुछ रसूलुल्लाह लेकर आए हैं वो तो ज़रा आप दरियाफ्त कर लो, दिक्कत से सोचो कि रसूलुल्लाह क्या लेकर आए हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म क्या दिया है, मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो मेरा रसूल दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से रोके उस चीज़ से रुक जाओ। यानी पहला काम हमने क्या करना है कि रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी से हमने दरियाफ्त करना है, वसूल करना है, लेना है जो कुछ रसूलुल्लाह लाए। और दूसरा काम क्या है, अतीउल्लाह, हमने रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, इताअत करनी है। अगर हमें खुदा से मोहब्बत है, अगर हम महबूब खुदा हैं तो हमारी मोहब्बत उस वक्त तक काफ़ी नहीं है। फत्तबिऊनी इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो ये तुम्हारी मोहब्बत नाकाफ़ी होगी। फत्तबिऊनी, जब तक तुम मेरे रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे। और अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह क्या लाए थे। रसूलुल्लाह की ज़ात जब दुनिया से जाने लगी तो सरकार ने फरमाया कि मैंने तुम्हें गुमराही से निकाला, तुम्हें जहालत से निकाला, तफरके से निकाला, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को जोड़ा और फिर तुम्हें तफरके से निकाल कर एक उम्मत का वजूद अता किया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अंदर तासुबात को ख़त्म किया, नफ़रतों को ख़त्म किया, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान किया है वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, रसूलुल्लाह के आने से पहले ये खुलम खुला गुमराही में
गर्क था ये मुआशरा, नफरतों में मुब्तला था, तासुबात में मुब्तला था, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात ने इन्हें पस्ती से बुलंदी की तरफ लाए, इनके अंदर गुमराही ख़त्म की, नफ़रतें ख़त्म की। और जब तासुबात नफ़रतें ख़त्म हो गई तो फिर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ऐलान भी हो गया और अल्लाह ताला ने खुद गवाही भी दे दी, कौन तुम खैरा उम्मतिन। अब ये वो उम्मत नहीं है, ये गुमराह नहीं है, ये तासुबात में नहीं है, अब ये बेहतरीन उम्मत बन गई है। सुभान अल्लाह। कौन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ। ये बेहतरीन उम्मत है। क्यों बेहतरीन उम्मत है? बेहतरी की अलामत क्या है? क्योंकि ये जाते हैं लोगों को नेकी का हुक्म देने के लिए। तअमुरून बिल मुनकर कुंतुम खैरत उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। नेकी का जहाँ हुक्म देते हैं वहाँ बुराई से भी मना करते हैं। और आप देखें ये रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया, और जब बेहतरीन उम्मत बन गई तो फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया अब मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि पीछे वापस न जाओ, गुमराही की तरफ न जाओ, जहालत की तरफ न जाओ, नफरतों की तरफ न जाओ, कौमों कबीला में अगर नहीं बटना चाहते, उम्मत रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी हिदायत और नजात का नुस्खा बता कर जा रहा हूँ। और वो नुस्खा क्या है? फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें तुम्हारी नजात के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। एक किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब है, और दूसरी क्या है? इतरती अहल बैती, मेरी अहल बैत। फ़इन्नहुमा लन यफ्तारिका हत्ता यारदा अलैहिल हौज़। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। और फिर फरमाया माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा। अगर तुमने इन दोनों के साथ मुतमस्सिक होकर ज़िंदगी गुजारी, दोनों के साथ मुतमस्सिक रहे, यानी कुरान का दामन भी ना छोड़ा और अहले बैत का दामन भी ना छोड़ा, तो मैं अल्लाह का रसूल ज़मानत देता हूँ तुम कभी गुमराह नहीं होगे, सुभान अल्लाह। कभी गुमराह नहीं होगे। यानी रसूलुल्लाह जी हमें दर्स दे रहे हैं और हमारी नजात का नुस्खा लिख कर दे रहे हैं कि अगर फ़कत तुम ये कहते हो कि हमें कुरान काफ़ी है बग़ैर अहले बैत के, फिर भी तुम नाकाम हो। अगर तुम ये कहते हो कि हमें अहले बैत काफ़ी हैं बग़ैर कुरान के, फिर भी तुम नाकाम हो। तुम्हारी कामयाबी की सनद मैं देकर जा रहा हूँ, ना दामन मुस्तफ़ा छोड़ना, ना दामन कुरान छोड़ना। और मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन ये है कि मेरी अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रहना। अगर तुमने अहले बैत के साथ तमस्सुक रखा, तुम्हें ये नजात, क्योंकि अहले बैत ये नजात की कश्तियाँ हैं, ये कुरान नजात की कश्ती है। ये कुरान तुम्हें गुमराही से हिदायत की तरफ लेकर जाएगा। ये कुरान तुम्हें बुत परस्ती से निकाल कर रहमान की तरफ लेकर जाएगा। और ये मेरी अहले बैत नजात का नुस्खा है जो मैं लिख कर दे रहा हूँ। अगर तुमने मेरी अहले बैत के साथ वाबस्ता होकर ज़िंदगी गुजारी तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, बस आखिरी फिक्र में आपके सामने और ज़हमत तमाम देखें, लम्हा फिक्रिया है कि हमने कितना तमस्सुक रखा है रसूलुल्लाह से, सुभान अल्लाह, कितना तमस्सुक रखा है अहले बैत से। अगर हम दिन के औकात, दिन के लम्हात को अगर हम सामने रखें और फिर हम अपना मुहासबा करें कि जो हमारा दिन गुजर जाता है, जो हमारे लम्हे गुजर जाते हैं, जो हमारा महीना गुजर गया है, किसी की 60 साल उम्र होगी, किसी की 70 साल होगी, कोई 30 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, उसने दुनिया भर की किताबें भी पढ़ी होंगी, लेकिन क्या ये दुनिया भर की किताबें अगर कुरान ना अपनाया तो ये नजात देंगी? नहीं। बोलो, नहीं देंगे। नजात देंगी? क्यों? इसलिए कि नजात का नुस्खा, इंसान साजी का नुस्खा कुरान है। सुभान अल्लाह। कायनात के रसूल फरमाते हैं
اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر خیرکم من تعلم القرآن و علما، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنا قرآن سے تمسک رکھتے ہیں، رسول اللہ کی اہل بیت سے کتنا تمسک رکھتے ہیں۔ جس طرح ہم قرآن سے تمسک رکھتے ہیں یعنی قرآنی آیات پر عمل کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اسی طرح اہل بیت سے تمسک رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی آل کے اقوال کو سمجھنا ہے، ان کے خطبات کو سمجھنا ہے، ان کے مکتوب کو سمجھنا ہے۔ جب ہم نے ان کے اقوال، مکتوب اور خطبات کو سمجھ کر زندگی بسر کی تو یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔